Hello students, we are discussing about the fuels. So what are fuels? A substance that produce energy on burning. That means जब कोई substance जलता है और जलने पर वो energy produce करता है, such substances are called fuel. And we are discussing about the uses of fuels. So we have discussed that fuels are used at our homes. So for cooking, so we use different types of fuels, and nowadays we use LPG cylinders, right? And then we have discussed about the fuels for transportation कि हम जो fuels हैं वो transportation के लिए भी use होते हैं because all the vehicles are run by fuels, and different types of fuels are used in different types of vehicles, and we have discussed about those. And then we have, in previous video we have discussed about the fuels for generating electricity, that how fuel is used to generate electricity. So we have done this activity. In this activity we have discussed how the powerhouses use coal to convert water into steams. First of all, coal is burned, and then water gets heated up. After that, when water gets heated up, the steam is produced. That means production of steam, and then turbine turns. With this steam, the turbine gets turned, and then the electricity is produced. But this method of generating electricity is not eco-friendly. That means it is not good for environment. Why? Because coal produces smoke and very harmful gases, and it also leaves ash after burning. और जलने के बाद ये ash means राख भी छोड़ते हैं. So that's why it is not an eco-friendly method of generating electricity. And it is being gradually given up, and other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity. So electricity produce करने के लिए धीरे धीरे ये जो method है इसको हम छोड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और इससे better options जो कि eco-friendly है उनको हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं. For example, electricity is produced by using the energy stored in water. Water में energy stored होती है. That is in dams. Dams में water को हम हाइट से जब गिराते हैं तो उससे भी वो टरबाइन को यहाँ पर टर्न हो रहा है. टरबाइन अल्टीमेटली मेन थिंग इज कि टरबाइन को टर्न करना है. वो कैसे करना है? वी कैन टर्न इट बाय द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इन डैम्स में गिरता है वाटर, वो टरबाइन रोटेट करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. सेकेंडली, विंड एनर्जी वी कैन यूज टू रन द विंड मिल्स में भी टरबाइन रोटेट हो जाता है, and again electricity is produced. And similarly, we can generate electricity by the energy of the sun, और जिसे हम बोलते हैं solar energy, right? And these all are eco-friendly methods because इनसे कोई harmful gases नहीं निकलती है और कोई भी environment को नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई ट्री कटता है, ना ही किसी दूसरे तरह का environment को नुकसान होता है. Now today we will discuss about the fuels and machines. Fuels and machines. So earlier household works means जो घर के हमारे काम होते हैं, जो भी काम है छोटे मोटे, उसे हम household works बोलते हैं. Like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds, and so on were done manually. सो यू ऑल नो कि पहले के टाइम में आपके जितने भी छोटे मोटे जो काम होते थे, जैसे क्लोथ्स वॉश करना है, यूटेंसिल्स वॉश करना है, वो कैसे होता था? मैनुअली मीन्स हाथों से खुद करते थे. आज के टाइम में भी आपने देखा होगा बहुत लोग क्लोथ्स मैनुअली ही वॉश करते हैं,
और यूटेंसिल्स तो जनरली आज के टाइम में भी बहुत लोग हाथ से ही वॉश करते हैं, बट दिस वॉज टाइम कंज्यूमिंग, स्लो एंड टायरिंग। और जब ये हम काम करते हैं अपने हैंड से, खुद काम क्लोथ्स वॉश करेंगे, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं या ये बाकी काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम थक जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई काम करेंगे तो वी गेट टायर्ड एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम लेता है और स्लो भी होता है, क्योंकि जब कोई भी हम वर्क करेंगे तो इतने फास्ट नहीं कर सकते जितना कि एक मशीन कर सकती है। देन हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन डेवलप्ड टू हेल्प us to do these jobs faster. हैंड ऑपरेटेड मशीन्स मीन्स ऐसी मशीन्स जो कि हाथों से ऑपरेट होती है, उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई फ्यूल से हम नहीं चलाते, हाथों से हम उस मशीन को चलाते हैं। सो इससे क्या हो गया कि हमारा जो वर्क है वो फास्टर हो गया। एंड सेकेंडली इट इज़ अ लेस टायरिंग। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ से कोई मशीन को ऑपरेट करते हैं, सो उतना ज़्यादा हमको उतने ज़्यादा जोर नहीं लगते, हमारी उतना एनर्जी यूज़ नहीं होती है। सेकेंडली वो फास्ट हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। जब कोई काम जल्दी हो जाता है तो हम उतने टायर्ड नहीं होते। Now later on, machines working through steam generated by burning coal were invented. As we have discussed कि जैसे steam engine है और उस टाइप से machines डेवलप हुई और उससे क्या हुआ, machines बनाई गई जिससे कि steam जो है वो वर्क करने लग गई। वो machines किससे वर्क करती थी? steam से। This resulted in an increase in the demand of coal. और जब स्टीम से वर्क करेगी कोई मशीन तो स्टीम ऑब्वियसली कहाँ से जनरेट होगा? बाय बर्निंग कोल। कोल बर्न होगा, देन वाटर हीट अप होगा, उससे स्टीम जनरेट होगी। सो उससे क्या होगी, कोल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। रेलवेज, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज सप्लाई ऑफ कोल। और इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई कोल की, क्योंकि शिप्स भी उससे चलती थी, रेल्स भी, पावर हाउसेस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फैक्ट्रीज, सबको क्या चाहिए? कोल चाहिए था। द रिजर्व्स ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली। और जो रिजर्व्स हैं हमारे नेचर में, कोल एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये हम लोग नहीं बना सकते, ये नेचुरल है और ये हमने ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। सो ये भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया। स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली, फास्ट, रैपिडली मीन्स फास्ट, ये कम होना शुरू हो गया। कोल कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड इजिली एज नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और ये बहुत टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। सो कोल कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड, वापस से ये कोल नहीं बन रहा था और इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। नेचर जो है इसको बनाने में बहुत टाइम लगाती है। टू मीट दीज चैलेंजेस, steam engines were gradually replaced by other engines which used liquid fuels like petrol and diesel. अब जो स्टीम इंजन्स थे उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। अब आज के टाइम में हमको स्टीम इंजन्स नहीं मिलते। वाई? बिकॉज उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। किससे? जो लिक्विड से चलने वाले फ्यूल से, धीरे धीरे, लाइक पेट्रोल और डीजल। नाउ वी कैन सी द डीजल इंजन्स इन ट्रेन्स। सो इनको हमने धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। किससे? जो इंजन्स हमारे लिक्विड फ्यूल से चलते थे, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑल ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। और ये कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हमको क्रूड ऑयल मीन्स पेट्रोलियम, ये भी हमारे जमीन के नीचे से निकलता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। इसको निकाल के उसको रिफाइन किया जाता है
इनको सेपरेट किया जाता है, जिससे आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है। ये सारी चीजें एक ही चीज से निकलती है, दैट इज पेट्रोलियम, और इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इसी एक क्रूड ऑयल से हमको पेट्रोल भी मिलता है, इसी से हमको डीजल भी मिलता है, और इसी से हमको केरोसिन भी मिलता है। इसको हम अलग अलग से कहीं से नहीं मिलते हैं, ये सारे क्रूड ऑयल से ही सेपरेट किए जाते हैं। However, petroleum reserves in nature is also limited and cannot be replenished easily. Now, not only the coal, सिर्फ कोल ही ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो रहा है और वो दोबारा से हमको मिलता नहीं है। जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, वो भी नेचर में लिमिटेड है, जैसे हमारा कोल है। तो ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये दोबारा से हमको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अगेन जैसे कोल को दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगता है, नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। सिमिलरली पेट्रोलियम को भी बनने में बहुत ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दैट्स वाई हमें इनको बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, और इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन अवर नेचर। So in next video we will discuss about fossil fuels. So what we have learned today, that how machines has replaced the manual work. जो पहले हम सारे काम कैसे करते थे, मैनुअली खुद करते थे, अब धीरे धीरे वो सारे काम कैसे होने लग गए, बाय मशीन्स। जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन्स होती हैं, और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं। ग्राइंड करने के लिए पहले हाथ से किसी चीज को हम पीसते थे, बट नाउअडेज हमारे पास ग्राइंडर, मिक्सर्स आ गए हैं हमारे पास, जिससे हम इजीली ग्राइंड कर देते हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मशीन्स आर डूइंग आवर वर्क। धीरे धीरे उन्होंने हमारे मैनुअल वर्क को खत्म कर दिया है। अब हम सारे ज्यादातर काम जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो मशीन से करते हैं। थैंक यू।